آج کی رات بہت زیادہ پراسرار تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ یوں تو میں بہت زیادہ بہادر تھی، کوئی چیز مجھے ڈرا نہ پاتی تھی۔ میری بہادری کی دلیل کے لیے کیا یہ بات کم تھی کہ ہر رات میری ڈیوٹی ایک ہسپتال میں مردہ خانے کے باہر لگتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق میں اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہی تھی جب ایک سینئر ڈاکٹر ایک لاش کو مردہ خانے کی جانب لے جا رہی تھی۔ میں اسی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں مردہ خانے میں چلی گئی۔ میں نے نئی آنے والی لاش کے اوپر سے سفید چادر ہٹا کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش تھی۔ میں نے نبض ٹٹول کر دیکھا تو وہ بند تھی۔ میں ہر روز بہت زیادہ لاشیں دیکھتی تھی مگر ہر جذبے سے عاری ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات تھی اب تو ہر روز لاشیں دیکھنا معمول کی بات تھی، مگر نہ جانے میرا دل اس عورت کو دیکھ کر کیوں دکھ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ ایک لاوارث تھی۔ جو بھی تھا مجھے اس عورت کے چہرے کو دیکھ کر لگا کہ شاید وہ بہت مظلوم سی تھی۔ میں مردہ خانے سے باہر آ کر اپنی ڈیوٹی سار انجام دینے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب ایک خوش لباس سا لڑکا ہسپتال میں داخل ہوا۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، الشبہ کہاں ہے؟ الشبہ اس عورت کا نام تھا جس کی لاش کچھ دیر قبل ہی مردہ خانے میں لائی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر اس کو بچا نہیں سکے۔ میری بات سن کر وہ لڑکا زور و قطار سے رونے لگا۔ مار دیا، میری الشبہ کو ان لوگوں نے مار دیا۔ وہ روتے روتے بار بار یہ جملہ دہرائے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کن لوگوں نے؟ تو وہ لڑکا بولا، الشبہ میری بیوی تھی، ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کے والدین بہت بڑے جاگیردار تھے، ان لوگوں کو یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ وہ صلح کے بہانے میری بیوی کو واپس لے گئے اور اس کو زہر دے کر مار دیا۔ میں حیرت زدہ سی اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس کی صداقت کے گواہ تھے۔ میرا دل پیس سا گیا تھا۔ وہ لڑکا میرے قدموں میں گر گیا اور بولا، اس کے والدین تو اس لاوارث لاش کو سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں، لیکن میں اس کو یوں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس کی تدفین میں خود کروں گا۔ اب مجھے یہ لاش لے جانے دیں۔ میں ششو پنج کا شکار تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ جب شوہر موجود ہے تو پھر کیوں میں اس عورت کو لاوارثوں کی طرح دفن ہونے دوں۔ میں نے اس لڑکے کو تسلی دی اور خود ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سارا ماجرا بتایا تو وہ بولے، ہاں ٹھیک ہے، لے جائے وہ لاش۔ ہم نے ایک لاوارث لاش شرح کرنا بھی کیا ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ باہر آئے اور اس لڑکے کے ساتھ بات کی۔ ہسپتال کے عملے کو باخبر کیے بغیر ہی انہوں نے یہ کام بہت رازداری سے کیا تھا۔ لڑکے کے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب میرے کان میں بولے، اپنی زبان بند رکھنا، اس راز کو راز ہی رہنے دینا۔ جتنے پیسے مانگو گی میں دوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس نیکی کے بدلے میرا ہسپتال یا میری جاب خطرے میں پڑے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ایک طرف پیسوں کی ضرورت تھی تو دوسری طرف جوان یا عورت۔ پیسوں پر میرا ضمیر نہ مانا۔ میں بولی، ڈاکٹر صاحب اگر میں نے پیسے لے لیے تو اس نیکی کا اجر ضائع ہو جائے گا، اس عورت کا راز راز ہی رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کر اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ میرا دل بھی اپنی نیکی کا سوچ کر کافی مطمئن تھا، مگر ایک دن گزر جانے کے بعد نہ جانے میرا دل کیوں گھبرانے لگا۔ رہ رہ کر الشبہ کا وہ مظلوم سا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ کیا وہ لڑکا سچ میں اس کا شوہر تھا یا پھر وہ کوئی ڈھونگی تھا؟ لوگ تو مردوں کے کفن تک چرا لیتے ہیں، وہ تو پھر جوان جا عورت تھی۔ کیا پتا وہ لڑکا اس کے گردے وغیرہ بیچ کر منافع کمانا چاہتا ہو۔ وہ لڑکی تو تھی بھی لاوارث، اس طرح تو اس کا کام بہت آسان ہو گیا ہوگا۔ میرا دل انجانے وسوسوں سے گھبرانے لگا تھا۔ میرا سکون حرام ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکے سے مل کر حقیقت کا پتہ ضرور لگاؤں گی۔ میرے پاس تو اس لڑکے کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس لاش کی فکر چین نہیں لینے دے رہی تھی، اور ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکے کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ اس فیصلے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ یہ تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گئی۔ میں نے سیدھی بات کی، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک راز کو راز ہی رکھوں، تو آپ مجھے منہ مانگا انعام دے گے۔ ڈاکٹر صاحب بولے، میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی تو مجھے حوصلہ ہوا۔ میں بولی، ڈاکٹر صاحب مجھے اس عورت کی بڑی فکر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہم نے کچھ غلط نہ کر دیا ہو، اس لیے میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اس عورت کی قبر ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بنا کچھ کہے ایک کاغذ پر مجھے پتہ لکھ کر دے دیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی تھی۔ میرے دل کو بہت سکون سا مل گیا تھا۔ رات کی ڈیوٹی ختم ہوئی۔ گھر جا کر میں نے کچھ دیر آرام کیا
और फिर मैं सफ़र पर निकल गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह सफ़र मुझे एक सबक सिखा देगा कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उस पते पर पहुंचकर उस घर को ढूंढा, फिर उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन ये देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि दरवाज़ा खोलने वाला और कोई नहीं बल्कि अलिशबा खुद ही थी, एक मुर्दा लड़की जिसकी लाश उसका शोहर दफनाने के लिए ले जा चुका था। अब वो दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तो चकरा ही गई थी। मैंने आओ देखा न ताओ जिस रिक्शे में आई थी उस ही रिक्शे में बैठकर वापस लौट गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था, मुझे शदीद घबराहट हो रही थी। मुझे लगा मेरी आंखों ने धोखा खाया है, लेकिन फिर भी एक मुर्दा लड़की को अपने लिए दरवाज़ा खोलते हुए देखना मामूली बात नहीं थी। मुझ पर शदीद किस्म का खौफ तारी हो चुका था। इसी खौफ के बायस मुझे बुखार हो गया। मैं 3 दिन बुखार में पड़ी रही थी, लेकिन जब बुखार कुछ कम हुआ तो मुझे फिर अलिशबा का ख्याल सताने लगा। मेरी आंखों ने जो देखा था उसको मानने के लिए मेरा दिमाग राजी नहीं था। बस मैंने अपनी बेसुकूनी को ख़त्म करने के लिए एक बार फिर से वहां जाने का इरादा किया था। मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं पूरा सच जानकर ही दम लूँगी। कुछ दिनों बाद जब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो मैं फिर से उस पते पर पहुँच गई। एक बार फिर अलिशबा ने ही मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। मेरे चेहरे का खौफ शायद वो बांध चुकी थी, इसलिए बोली थी, हाला घर आइए, घबराइए मत, मैं जिंदा ही हूँ। आपकी परेशानी मैं शायद कम कर सकूँ। मैं उसके साथ घर में दाखिल हो चुकी थी। घर में हो का आलम था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने उससे पूछा, अलिशबा बेटा तुम तो मर चुकी थी ना, और वो तुम्हारा शोहर वो कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अलिशबा बोली, हाला मैं कब मरी थी? मरा तो मेरा शोहर था, उसे मरे हुए तो 8 माह का अरसा बीत चुका है। अलिशबा की बातें सुनकर मैं तो चुकरा कर रह गई थी। मैंने उससे कहा, बेटा पहेलियाँ मत बजाओ, मुझे सारी हकीकत बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है? तो वो बोली, हाला मैं एक गरीब तबके से तल्लक रखने वाली लड़की हूँ। हम 3 बहनें थी, मैं सबसे बड़ी थी। हमारे घर 2 वक्त की रोटी मिलना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता था, इसलिए मेरे वालिदैन जल्दी से बेटियों के बोझ से आज़ाद होना चाहते थे। मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरे चचाजाद कज़न अवैस अहमद से तय हो चुका था। हम दोनों को उस रिश्ते की बाबत मालूम था, इसलिए हम दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ गई थी। हमारी शादी 1 माह बाद होना तय पा गई। हम दोनों ही ये दिन गिन गिन कर काट रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी अम्मी के साथ एक करीबी रिश्तेदार की शादी में गई, जहां मुझे एक बड़े जागीरदार के बेटे ने पसंद कर लिया था। एक ही हफ्ते बाद मेरा रिश्ता आ गया। मैंने साफ इनकार कर दिया था, मगर इतने बड़े जागीरदार का हमारे गरीब हान ने आना कोई मामूली बात तो नहीं थी ना। अब्बू ने उनको बताया कि मेरा रिश्ता मेरे चचा के हाथ तय है। अगर हमने रिश्ता आपसे जोड़ लिया तो मेरे भाई के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। उसके ओज़ हमें कुछ तो मिलना चाहिए। यूं अब्बा ने मुझे 50 लाख रुपए में बेच दिया था। जिस दिन मेरी बारात थी, अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, अलिशबा तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी 2 बहनों के रिश्ते भी अच्छी जगह हो जाएंगे। मैं खामोश ही रही थी और हमारे घर से भी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। यूँ मैं ब्याह कर जागीरदार के घर आ गई और अपने रिश्तों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने अब्बू को 50 लाख थमाए हुए थे और ये शर्त रखी थी कि आज के बाद ना आप लोग अलिशबा से मिलने आएंगे और ना ही अलिशबा आपके घर आएगी। ये बात बताकर अलिशबा ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने उसको दिलासा देकर चुप कराया। जब वह थोड़ी संभल चुकी थी तो मैं खामोशी से उठकर अपने घर आ गई। मुझे अलिशबा के साथ बड़ी खामदर्दी महसूस हुई, लेकिन मैं बेबस थी। मैं कर ही क्या सकती थी। मैं अक्सर नमाज में उसके लिए दुआ करती थी। एक दिन मैं यूं ही अलिशबा के लिए दुआ कर रही थी तो दिमाग में एकदम से घंटी बजी थी। अलिशबा ने मुझे अपनी शादी के मतलब तो बता दिया था, मगर अपने शोहर के बारे में और अपनी मौत के मतलब तो कुछ बताया ही नहीं था। मैं भी कितनी पागल थी। अलिशबा के आंसू देखकर बुखला गई और अधूरी बात जानकर वापस आ गई। मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ। मैंने कितनी मदद की थी उसकी, लेकिन फिर भी वो मुझे अपना सच बताने से कुतरा रही थी। लेकिन जो भी था, मैंने दिल में ये ठान ली थी कि एक बार फिर से अलिशबा के घर जाऊंगी और मुकम्मल सच जानकर ही आऊंगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे रिक्शा रोका और उसके घर जा पहुंची, लेकिन मुझे शदीद धचका तब लगा जब उसके घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। उस ताले को देखकर मैंने दिल में सोचा कि अब अलिशबा और उसकी मौत का राज ही रहेगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। मैं मायूसी घर लौटी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे घर के दरवाजे के सामने अलिशबा खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अपने साथ घर ले आई। उसको पानी पिलाकर उसके पास बैठ गई थी। मैंने पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुँची है, तो वो बोली, मुझे जो लड़का अस्पताल से ले गया था
मुझे जो लड़का अस्पताल से ले गया था उसी ने डॉक्टर साहब से आपका पता लेकर दिया है। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो बोली मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए। मैंने ठिकाना देने की हामी भर ली थी। मैंने उससे कहा था कि अगर वह बगैर चालाकी के मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी दास्तां सुना देगी तो मैं उसकी कुछ मदद कर सकूंगी। वो रोने लगी थी और रोते हुए वो अब अपनी ज़िंदगी का खुलासा मुझे बताने लगी थी। हालांकि मेरी शादी जागीरदार के बेटे से हो चुकी थी। मैंने कड़वा कोट समझ कर पी लिया था और अपने शोहर को दिलो जान से अपना लिया था, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ वफा नहीं की। मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरे शोहर दुश्मन की गोली लगने से इस जिंदगी से कूच कर चुके थे। अब ससुराल मेरे लिए जेल बन चुका था। मुझे हर कोई मनहूस कहता था। लोग कहते थे कि मैंने जागीरदार के बेटे को खा लिया है। मेरी सास मुझ पर जुर्म करने लगी थी। मुझे घर में मुलाजमत से भी कम दर्जा दिया गया था। अल्लाह अल्लाह करके मेरी इद्दत पूरी हुई तो मेरे वालिदैन मुझे लेने आए थे, मगर जागीरदार साहब ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। वह बोले कि आप लोग तो अपनी बेटी 50 लाख की औज बेच चुके हैं, अब यहाँ क्या करने आए हैं। मेरी जिंदगी इस कैदखाने में दिन ब दिन तंग होती जा रही थी। इन्हीं दिनों में मेरी सास को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन उनकी जान बच गई थी। वो अस्पताल में ही एडमिट थी। उन्होंने फरमाइश की थी कि मेरी अलिशबा ही उनकी खिदमत करेगी। यूँ मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल से घर और घर से अस्पताल आती जाती रहती, लेकिन एक दिन ड्राइवर बोला कि वो मुझे पसंद करने लगा है। मुझे उसकी बात शदीद नापसंद आई और मैंने उसको धमकी दी थी कि उसकी सारी असलियत मैं जागीरदार साहब को बता दूंगी। वो बोला जागीरदार साहब को अगर तुम कुछ भी ऐसा वैसा बताओगी तो वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, उल्टा तुम पर ही मजीद सख्ती कर दी जाएगी। मैं खामोश हो गई थी। यूँ ड्राइवर मुझसे अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता था, लेकिन मैंने उसका मतलब कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। हर कोई तो ससुराल में मेरा दुश्मन था। मुझे वाहिद सहारा ड्राइवर ही नजर आया था। उसके साथ निकाह करके कम अज कम मेरी इज्जत तो महफूज रहती ना। यूँ मजबूरी के तहत मैंने ड्राइवर से कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे यहाँ से आज़ाद करा लो, मैं तुम्हारी ही हो जाऊंगी। आगे जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अल्लाह वो ड्राइवर मुझसे वफा नहीं कर सका। वो मुझे आपके घर के दरवाजे के सामने हमेशा के लिए छोड़ गया है। वो डर गया है कि अगर जागीरदार साहब को मालूम हो गया कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा हूँ तो उस मौत के घाट उतार देंगे। अलिशबा मुझे ये सब बताकर रो पड़ी थी और उसकी मौत का राज अब भी राज ही था, मगर मैंने उस वक्त उससे मजीद पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उसे खुले दिल से अपने घर में पनाह दे दी थी। मैं खुद तो तनहा रहती थी, इसलिए घर के कामकाज मुझे खुद ही करने पड़ते थे। लेकिन अब जब से अलिशबा आई थी उसने सारा घर संभाल लिया था। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शदीद सहमी हुई रहती थी। जब वो काम कर रही होती थी तो मैं उसके पास चली जाती तो वो अचानक बुखला जाती। वो अक्सर कहती थी मुझे लगा शायद जागीरदारनी आ गई है। उसके हाथों पर जागीरदारनी के मुजालिम के निशान थे। बाजू नील से भरे पड़े थे। अभी तो अलिशबा को यह मालूम ही नहीं था कि मैं उससे चोरी चुपके किसी से राब्ते में थी। अगर उसे यह मालूम हो जाता तो वो डर से मर ही जाती। मैंने उस इंसान को बता दिया था कि अलिशबा जिंदा है। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने गलत किया या दुरुस्त, मगर उसके मौत के ड्रामे में उसका साथ देना मुझे मुनासिब नहीं लगा था। एक दिन मैंने अलिशबा से कहा था कि आज तुम तैयार रहना, आज तुमसे कोई मिलने आने वाला है। तो वह शदीद घबरा गई और कहने लगी हाला खुदा का वास्ता है मुझे किसी के हवाले मत करिएगा, मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। मेरे अपनों ने मेरे साथ वफा भी नहीं की। अगर आपने मुझे जागीरदारों के हवाले कर दिया तो वो मुझे भूखे कुत्तों के सामने फेंकवा देंगे। अलिशबा ज़ारों की तरह रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो छोटे बच्चे की तरह सहम गई, मुझसे लिपट गई। मैंने उसे तसल्ली दी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े शख्स को देखकर अलिशबा मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। सामने अवैस खड़ा था, अलिशबा के बचपन का मंगेतर। अवैस की भी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो रोते हुए बोला मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी अलिशबा, इसलिए तो आज रब ने मुझे तुमसे मिला दिया है। जब ताया जी ने तुम्हें मुझसे छीन कर किसी और को सौंप दिया था तो तब भी मेरे दिल में तुम मौजूद थी। अलिशबा अब भी रो रही थी। अवैस ने अलिशबा से उसकी मौत की खबर का मतलब पूछा तो वो बोली जागीरदारनी मुझे अपने बेटे की मुजरम समझती थी। वो मुझ पर जिंदगी हराम कर देना चाहती थी। ड्राइवर चूँकि मुझसे शादी करना चाहता था इसलिए उसने एक मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत उसने मुझे नींद की गोलियां दे डाली। मैं बेहोश हो गई थी तो उसने घर में शोर डाल दिया कि अलिशबा बीबी ने खुदकुशी कर ली है।
पूरी हवेली हिलकर रह गई थी। जागीरदार ने जी किसी सूरत नहीं चाहती थी कि मैं मरूं, इसलिए उन्होंने मुझे अस्पताल भिजवा दिया। ड्राइवर ने अपने एक दोस्त डॉक्टर से पहले ही बात तय कर ली थी, इसलिए उसने बड़े जागीरदार को बताया कि अलिशबा इंतकाल कर चुकी है। खुदकशी का केस पुलिस केस होता है और आप मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, आप यहाँ से चले जाएं। हम इस लाश को लावारिस कह देंगे और खुद ही इसकी तदफीन भी कर देंगे। जागीरदार साहब ने उनकी बात मान ली और यूं वो मुझसे जान छुड़ाकर चले गए। हाला, ड्राइवर ने आपसे झूठ बोला था, वो मेरा शोहर नहीं था, वरना ही हमने घर से भाग कर शादी की थी। वो तो बस आपकी खिदमत बटोरना चाहता था। डॉक्टर से उसने पहले ही बात की हुई थी। यूं वो मुझे एक किराए के मकान पर छोड़कर चला गया और हर रोज 10 मिनट के लिए आकर मेरी हैरियत मालूम करके चला जाता, मगर फिर वो मुझसे निकाह करने वाले वादे पर कायम न रह सका और मुझे आपके घर छोड़कर फरार हो गया। अवैस अलिशबा की बातें सुनकर उसे तसल्ली देने लगा और फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हाला, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करेंगी? मैं मुस्कुरा दी और बोली, हाँ अवैस बेटा। फिर मैंने और अवैस ने झटपट मौलवी साहब का इंतज़ाम किया और दोनों का निकाह पढ़वा दिया। और यूं अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे की उम्र में एक बेटा और एक बेटी से नवाज दिया है। अलिशबा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे, मगर अब वो अवैस के साथ बहुत खुश है। उसको देखकर मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे दो मोहब्बत करने वालों को आपस में मिलवाने का ज़रिया बना दिया।